तो अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अभी हम पेंडुलम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पेंडुलम प्रॉब्लम क्या होता है, देखो अगर ये रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से वर्टिकल लाइन, यहां से मैं सिल्क थ्रेड कंसीडर करूंगा और दो चार्ज को यहां से हैंग करूंगा। ये माई फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज माई सेकंड चार्ज, my second charge, let the magnitude of both the charges, this is q, mass m, this is charge q and mass m. Qualitatively and logically अगर हम बात करेंगे तो मास सेम है, चार्ज भी सेम है, so Coulomb's force और electrostatic force is an action reaction pair. That means ये फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, सेकेंड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज के ऊपर उतना ही चार्ज लगाएगा, सेम फोर्स। क्लियर? फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, because electrostatic force of interaction is an action reaction pair. Clear to all of you? But action and reaction never cancel each other because two forces act on different bodies. Action अगर इसके ऊपर लग रहा है तो reaction इसके ऊपर लग रहा है। एक बॉडी में इक्वल मैग्नीट्यूड का दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो these two forces will not or never cancel each other's effect. Clear to all of you? Because two forces act on different bodies. Okay. और क्या क्या फोर्स लग सकता है? ये W weight of the body mg, ये भी W mg weight of the body। और क्या फोर्स है? और क्या बताइए? Tension along the string. Let the length be L, here also L. Let the angle of inclination to the vertical theta, this is theta. So due to this repulsive force, two charges will be separated from each other. So this is the distance of separation. If this is L and this is theta, this must be L sin theta. So this is L sin theta. So this is also L sin theta. Okay? Clear to all of you? So distance between two charges will be equal to 2L sin theta. Clear to all of you? अगर मैं एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन आपको पूछूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं, what is the relation? Suppose this is theta 1, this is theta 2. So theta 1 theta 2 का रिलेशन क्या हो सकता है? theta 1 is equal to theta 2, theta 1 greater than theta 2, theta 2 greater than theta 1, नॉन ऑफ अबव। चलो ये तीन, चलो बताइए क्या हो सकता है? इट इज वेरी क्लियर, एज these two forces are equal in magnitude and opposite in direction and masses of the two bodies are same, दोनों का मास इक्वल है, this mg tension along the string, this is tension T, this is tension T. Okay, so the figure is purely symmetric. The figure is purely symmetric. That's why theta 1 must be equal to theta 2. Clear?
थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2। थोड़ा सा ट्विस्ट अगर करें, सपोज हियर इज चार्ज q1, here is charge q2, mass of both the bodies are same. You see, suppose this is m1, this is m2, m1 is equal to m2 is equal to m, say mass of both the bodies same, but q1 is greater than q2. q1, let the charge of this body is greater than charge of this body. Please tell me, under these circumstances ये ठीक होगा या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा? थोड़ा सोच के बताइए। Think over the matter, think over the situation. Electrostatic force of interaction is an action reaction pair. चार्ज चेंज होने से ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। You see, the magnitude of both the forces are same, although they are opposite in direction, but the magnitude of both the forces are same. That is why, again, weight is same, force is same, tension same, everything same, situation. Now again theta 1 will be equal to theta 2. Theta 1 will be equal to theta 2. ठीक है, clear to all of you? Now next situation. Next situation. देखो, अभी m1 is greater than m2. m1 is greater than m2, but q1 is equal to q2. Is equal to q same. So magnitude of the charges same, may be different, okay? It may be different also. For instance, magnitude of the charges same, but m1 is greater than m2. Now please tell, ये ठीक है या ये ठीक है या ये ठीक है? कौन सा ठीक होगा? अभी वही यही ठीक रहेगा क्या? No. You see, ये तो एक्शन रिएक्शन बन जाएगा, ये k q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये भी k q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर r है तो ये अगर r हो जाएगा तो k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये भी k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। दिस इज r 12 sin थीटा, ओके? बट m1 इज ग्रेटर देन m2, सो m1 अगर ज्यादा होता है तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा। इसका वेट क्या होगा? कम होगा। इसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्या होगा सिचुएशन? ये नीचे आ जाएगा। ये अगर नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ओके? ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा क्या होगा? थीटा कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। दिस इज द सिचुएशन। theta 1 will be less than theta 2. That means theta 2 बड़ा हो जाएगा. Theta 2 will be greater than theta 1. Clear to all of you? Clear to all of you? Now switch over to quantitative problems. So quantitatively अगर हम इसको डिस्कशन करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर चार्ज सेम है तो ये QM, ये भी QM, ओके? तो अभी वेट भी इक्वल हो जाएगा। सो चलो देखते हैं। सो ये W इज इक्वल टू mg, ओके? सो r स्क्वायर की जगह हम कितने लिख सकते हैं? 2l sin थीटा होल स्क्वायर। दिस इज 2l sin थीटा होल स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो Fe is equal to 2l sin theta whole square, and this is the tension, this is the weight, and this is the electrostatic force. This is the situation, okay? So theta 1 will be equal to theta 2, let it be theta. You see, अगर हम फोर्स को बैलेंस करेंगे, you see,
अगर दिस टी को हम कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे along वर्टिकल डायरेक्शन, दिस विल बी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये टी है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा टी साइन थीटा। सो दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। अगर इसको हम बैलेंस करके लिखेंगे तो यू सी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इसमें फर्स्ट इक्वेशन टी कॉस थीटा is equal to mg because the particle will be in equilibrium, so net force in the vertical direction will be equal to 0 and net force on the horizontal direction will also be equal to 0. So this is my first equation, and along this direction you see k t sin theta is equal to kq square divided by 4l square sin square theta. So हमारे पास अभी दो इक्वेशन है, देखिए वेरिएबल क्या क्या है, टेंशन एक वेरिएबल है, मास कैन बी वेरिएबल, दिस q कैन बी वेरिएबल, ओके, थीटा कैन बी वेरिएबल एंड L कैन बी वेरिएबल। बाकी G तो कांस्टेंट है, K तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। सो ये 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास ये दो इक्वेशन में। अगर इन पांचों में से हमको कम से कम 3 वेरिएबल अगर प्रॉब्लम में दिया गया है तो बाकी दो को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है। नाउ कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, पेंडुलम का। अगर हमको क्या है 3 वेरिएबल का वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लमीस थ्योरम। सो फर्स्ट ईयर में वेक्टर चैप्टर में आपको लमीस थ्योरम के बारे में डेफिनेटली बताया गया होगा। तो लमीस थ्योरम क्या बोलता है? सो अकॉर्डिंग टू लमीस थ्योरम, if a particle is in equilibrium under the simultaneous application of 3 forces, let this be my F1, suppose it is P force, and this is Q force, and this is R force. P, Q and R are 3 vectors. Let it be forces. Okay, so 3 forces. The angle between P and Q, this is suppose this is alpha, and this is beta, and this is gamma. Then Lami's theorem states that if a particle is in equilibrium under the simultaneous application of 3 forces P, Q, R, that is P plus Q plus R is equal to a null vector, then the ratio of the first force, the ratio of a force to the sine of angle between other 2 forces, ratio of a force and with the sine of angle between other 2 forces Q and R, that is alpha, is equal to a constant quantity. That means this is a force Q divided by sine of angle between other 2 forces
दिस इज साइन बीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, that is gamma. So this is a very very interesting and very strong tool in the hands of physicists to solve numerous problems. ये प्रॉब्लम को चुटकी से हम सॉल्व कर सकते हैं by using this Lami's theorem. ओके, चलो आइए इधर देखते हैं. तो ये प्रॉब्लम को हम अगर डील करेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए. You see, so this is my, ठीक, देखो. सो ये t है, ये एंगल थीटा है. ओके, हम क्या लिख सकते हैं अभी देखो. सो फर्स्ट दिस t divided by, this is the first force, this is my first force, and this is my electrostatic force, this is my, ये क्या हो गया, ये सपोज अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया. सो t डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री. यू सी, ये फोर्स कितना एंगल करता है, 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री. ठीक है. सो एनी फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, ये तीन फोर्स है, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट, तीन फोर्स है. ये लॉ मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये तो थ्योरम को मैं अप्लाई कर रहा हूं अभी. सो T fast force divided by angle between, sine of angle between these two forces is equal to Fe divided by angle between other two forces. You see this angle क्या होगा, ये sine of 180 minus theta, 180 degree minus theta. Clear? Is equal to mg third force divided by angle between these two forces. This is 90 plus theta, sine 90 degree plus theta. So this implies T is equal to Fe divided by sine theta is equal to mg divided by cos theta. So इसको यूज करके कुछ भी Fe का वैल्यू हमको मालूम है, Fe का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके थीटा का वैल्यू भी अगर दिया जा सकता है, सो हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं. यहां ये एक दीवार है, ये एक दीवार है. ओके, यहां हिंज है, यहां हिंज है, यह हिंज, यहां हिंज है. यहां से एक चार्ज को, ये यहां एक चार्ज फिक्स्ड है, यहां एक चार्ज फिक्स्ड है L दूरी में. दिस इज L दूरी के नीचे एक चार्ज Q फिक्स्ड है, एक चार्ज फिक्स्ड है वॉल में, और एक चार्ज Q को यहां से अगर हम हैंग करेंगे एक थ्रेड में, सिल्क थ्रेड में अगर हम हैंग करेंगे, तो डेफिनेटली ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये चार्ज आके ऐसे रुकेगा कि नहीं बताइए. चलो, तो अगर ये थीटा एंगल होगा, अगर ये थीटा एंगल रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में
रिपल्सिव फोर्स, ये अगर ये भी Q है तो ये Fe इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अगर ये R होगा। ठीक है, तो मेरा प्रश्न है, क्या हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये इसका मास m है, इसका मास m है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट? कैन वी कैलकुलेट? यू सी नाउ, अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली अगर इसको, ये तो वेट हो गया, ये वेट W हो गया इज इक्वल टू mg। ठीक है, सो देखिए थोड़ा सा, ये अगर x होगा, ये अगर x होगा तो अगर दो लाइन को हम ऐसे कट करेंगे तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं? तो ये दो देखो पैरेलल लाइन है, ये दो क्या है? वेट वर्टिकल डाउनवर्ड्स x। सो ये दो पैरेलल लाइन है और इसको कट किया एक लाइन में। सो अगर ये x है तो ये भी x है कि नहीं? ये एंगल भी x होगा। चलो अच्छा, you see this is an equilateral triangle, this is an equilateral triangle. Approximately if this is very small, this curve becomes chord. For small angle theta, for small angle theta, this is a chord but this becomes chord. Okay, ये अगर थीटा है तो सही x है तो इसको भी x बनना पड़ेगा। बताइए क्यों नहीं? ये L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ओके, तो बताइए अभी ये एंगल कितना बनेगा? ये हो जाएगा 180 माइनस x, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। यहां देखिए ये एंगल कितना बन जाएगा? ये एंगल कितना बन जाएगा? तो ये भी 180 डिग्री, 180 माइनस x बन जाएगा कि नहीं? चलो अभी लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो T फर्स्ट फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस Fe एंड W कितना है? साइन 180 डिग्री माइनस x होगा कि नहीं? इज इक्वल टू Fe, इसको भी ले सकते हैं हम W डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन T इक्वल टू W, this implies T is equal to mg in terms of G, in the tension in terms of G. Clear to all of you? Clear? Very clear? Any doubt? Any doubt? Let me erase. Okay? Clear? So tension is equal to mg. So इस पेंडुलम प्रॉब्लम का और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, और एक प्रॉब्लम चलो देखते हैं। थोड़ा इंक listen, suppose this is a rigid support. From this rigid support, two charged particles, suppose this is Q
and this is Q or hang, and it is found that in this equilibrium condition, suppose mass of this body is m, mass of this body is also m. Under this situation, so the angle here is 45 degree. This must be also equal to 45 degree. It is found that in equilibrium condition, the two strings make an angle of 45 degree with the vertical. Okay, this is length L, this is length L, length L and length L. Okay, so definitely this is L sin 45 degree. This is also L sin 45 degree. So is equal to L divided by root 2. This is also equal to L divided by root 2. So L by root 2, L by root 2. 2L by root 2 is equal to 2L by root 2. So is equal to root 2 times L. So this is the distance between two charges, root 2L. Okay. So the electrostatic force over here, Fe, is equal to K Q square divided by root 2 L ka square. So is equal to K Q square divided by 2L square. So this is the electrostatic force between these two charges, and this is the weight of the body. W is equal to mg. W is equal to mg, and this is the tension. This is the tension. Keep in mind, over now you see, suppose this is a vertical direction. Suppose this is my 45 degree. If this is 45 degree, this is also 45 degree. So we can write W divided by this angle. W divided by angle between other two forces, divided by sine of 90 plus theta, 90 plus 45 is equal to, you see, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री. तो ये कितना बन जाएगा, Fe divided by sine of 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा. तो ये अगर हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री इज इक्वल टू Fe डिवाइड बाय sin 45 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज mg डिवाइड बाय 1 बाय रूट 2 is equal to Fe divided by 1 by root 2. This 1 by root 2 cancels out. So here we got Fe is equal to mg. Fe is equal to mg. That means Q square divided by 2L square is equal to mg. Let this be equation number 1. So Q square divided by 2L square is equal to mg. This is the first equation. एक प्रश्न है, अगर सेकेंड सिचुएशन में वही दो चार्ज, इज द वर्टिकल लाइन, अगर दो चार्ज को थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे, दो चार्ज को पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, इसको हम 60 डिग्री कर देंगे, 60 डिग्री कर देंगे, और यहां भी अगर 60 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा, सोचो. ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, ये पार्टिकल अभी F नेट
इज इक्वल टू 0। प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में दिया गया ये 45 एंगल में एफ नेट 0 है, ये इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई। अगर इससे अगर हम फोर्स को ज्यादा कर देंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वेट तो उतना ही रहेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ मींस इधर होगा, इसका कंपोनेंट जो होगा mg sin थीटा का कंपोनेंट इधर होगा, वो डोमिनेट करेगा। तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, इस तरफ एक नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। सो अभी प्रश्न है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन लेफ्ट फ्री एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री करके अगर हम छोड़ दें तो इसका जो एक्सेलरेशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ जी, फाइंड आउट। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आओ देखते हैं। हमारा काम क्या है, इस तरफ हम नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू समथिंग निकालेंगे, इसमें से हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रश्न है ए इज इक्वल टू हाउ मच। चलो आओ प्रॉब्लम को देखते हैं। सो दिस इज द line, so this is the electrostatic force Fe prime, Fe prime, let it be. So this is mg, this is mg, okay। अगर ये देखिए, ये अगर 60 डिग्री है, ये भी होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, ओके। तो थोड़ा ठीक से बना दे। सो ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये बनेगा कितना, 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो ये तो टेंशन T है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये भी अगर 60 है तो ये भी 60 बन जाएगा, 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में जो Fe प्राइम का जो कंपोनेंट होगा, अगर ये 60 होगा, ये 60 डिग्री अगर होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 30, ओके। तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर। तो Fe का जो कंपोनेंट इधर है तो कितना हो जाएगा, Fe प्राइम cos 60 डिग्री, सॉरी, इट इज Fe प्राइम cos 60 डिग्री। इसका कंपोनेंट इधर कितना बन जाएगा, इधर ये थोड़ा बड़ा बनेगा, इसमें से ये फोर्स से ये फोर्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो mg कितना हो जाएगा, mg cos 30, ओके। दिस इज mg cos 30 लिख सकते हैं, और mg cos sin 60 भी लिख सकते हैं। mg cos 30 लिख सकते हैं और mg sin 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो F नेट ये दो फोर्स का, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। सो F नेट इज इक्वल टू mg cos 30 माइनस Fe प्राइम cos 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। देखो ये Fe प्राइम का कंपोनेंट इधर है, ये mg का कंपोनेंट इधर है, बाकी फोर्स को इग्नोर करो क्योंकि हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 45 डिग्री में अगर इक्विलिब्रियम है तो 60 डिग्री अगर हम करके छोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये तो नीचे की तरफ आएगा, टांजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके।
सो एफ नेट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बड़ा फोर्स है, माइनस छोटा फोर्स एफ ई प्राइम कॉस 60 डिग्री। तो खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। सो कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू दिस इज एम ए इज इक्वल टू एम जी √3/2 माइनस एफ ई प्राइम डिवाइड बाई 2। सो एफ ई प्राइम आप इधर देखो, ये अगर एल है तो एल साइन 60 डिग्री, दिस इज आल्सो एल साइन 60 डिग्री, तो दोनों मिलके ये होगा √3/2। ओके, सो cos 30 साइन 60 कितना है, साइन 60 कितना है, cos 60 अगर हाफ है तो √3/2l, ये भी √3/2l, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ये पूरा कितना बन जाएगा, √3l बन जाएगा। तो बताइए एफ ई कितना होगा, तो इज इक्वल टू एम जी √3/2 माइनस एफ ई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो 3l स्क्वायर। ओके, सो यू सी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, फ्रॉम हियर k q square divided by l square is equal to 2mg. k q square divided by l square is equal to 2mg. You see, k q square divided by l square is equal to 2mg. So is equal to mg √3/2 minus 2mg divided by 3. So we can find out over here. So mg को अगर हम कॉमन ले जाए तो √3/2 minus 2/3। ठीक है, सो इसको सॉल्व करके, सो m कैंसल्स आउट, दिस m एंड m कैंसल्स आउट, तो a इज इक्वल टू दिस मच, ओके। सो दीज आर वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।